ہفتہ کے خصوصی پروگرام عوام تک کے ساتھ میں ہوں ملتان سے شریف جویا۔ ایک اچھی لوکیشن، اچھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں گھر بنانا ہر شخص کا خواب ہوتا ہے۔ اس خواب کی تعبیر کے لیے وہ اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی ایک پلاٹ کی خریداری میں لگا دیتا ہے۔ چند مہینوں بعد اس کا یہ خواب اس وقت چکنا چور ہو جاتا ہے جب مختلف سرکاری اداروں کی جانب سے ایسی ہاؤسنگ کالونیوں کو غیر قانونی قرار دے کر سیل کر دیا جاتا ہے۔ یوں شہریوں کے کروڑوں روپے ڈوب جاتے ہیں۔ ایسی کالونیوں کے خلاف سرکاری ادارے کیا کام کر رہے ہیں اور شہریوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لگانے سے پہلے اور نقصان سے بچنے سے پہلے کن چیزوں کو چیک کریں؟ آئیے اس پروگرام میں جانتے ہیں۔ گھر بنانا جو ہے نا ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملتان میں کہاں پلاٹ اچھے مل رہے ہیں؟ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے خریداری سے پہلے؟ دیکھیں جی، آج کل کے دور میں فراڈ بہت ہو رہے ہیں۔ جو اگر کوئی گھر بنانا چاہتا ہے یا کسی ہاؤسنگ سکیم میں کوئی پلاٹ لینا چاہتا ہے تو اس کو پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے اس بندے کو کہ وہ یہ چیک کرے کہ آیا یہ اسکیم پاس ہے متعلقہ ادارے سے، جس میں ایم ڈی اے بھی آ جاتا ہے، کارپوریشن بھی، ضلع کونسل بھی۔ اگر وہ پاس ہے تو پھر تو وہ پلاٹ خریدے، ورنہ اس بیچارے کو پھر کچہریوں کے چکر کاٹنے پڑ جاتے ہیں، عدالتوں کے چکر کاٹنے پڑ جاتے ہیں۔ وہ کالونی پاس نہیں ہوتی، جب گھر بنانے کا ٹائم آتا ہے تو پھر محکمے آ جاتے ہیں، وہ نقشے اپروو نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے جو عام شہری ہیں ان کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ جو کالونیاں بن رہی ہوتی ہیں، بڑے بڑے اشتہار لگاتے ہیں، اخباروں میں بھی، چیزوں میں بھی، بل بورڈ بھی لگے ہوتے ہیں، اس وقت محکمہ نہیں حرکت میں آتا؟ جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے، محکمہ حرکت میں آتا ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو وہ جنہوں نے بینر لگا رکھے ہوتے ہیں وہ منظر عام پہ نہیں لاتے۔ محکمہ اپنا فرض ادا کرتا ہے، اس کو جو ہی پتہ چلتا ہے وہ کارروائی کرتے ہیں، لیکن ایک عام شہری کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے خلاف سٹے چل رہا ہے، محکمہ کیا کارروائی کر رہا ہے۔ وہ جو کالونی کے نام سے ٹھگ رہا ہوتا ہے عام شہری کو، تو عام شہری کو چاہیے پہلے تصدیق کرے متعلقہ محکمے سے، اس کے بعد پلاٹ خریدے۔ اچھا آپ بتائیں سر کہ عموماً ملتان میں کیا پریکٹس ہے کالونیوں کے حوالے سے؟ ملتان میں آج کل بہت بڑے پروجیکٹ شروع کیے گئے ہیں، جس میں سے فائل سسٹم ہے، جبکہ یہ غلط ہے۔ جب تک رجسٹری نہ ہو، عوام کو پہلے ایم ڈی اے یا ٹی ایم اے سے، میونسپل کارپوریشن سے معلومات لینی چاہیے کہ آیا کہ یہ کالونی اپروو ہے یا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بہت سبز باغ دکھاتے ہیں لوگوں کو کہ ہم اتنا یہ ہوگا، لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنی ڈیولپمنٹ کرائیں گے، بیچ میں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اب اسی طرح ایک کچھ ہاؤسنگ اسکیمیں گلبرگ ہے، یہ ہے، اس میں کافی اب تک سیلنگ رہی ہے، اس میں لوگوں کے کافی پیسہ ڈوبا پڑا ہے، ابھی تک وہ ڈیولپمنٹ بھی نہیں کر رہے اور بتا بھی نہیں رہے آگے ہمارا کیا ہے۔ اچھا یہ کالونی والے ہوتے ہیں، ان کے جو دفتر ہوتے ہیں، اس میں انہوں نے مختلف اداروں کے نا لیٹر لگائے ہوتے ہیں، وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ وہ تھوڑا سا اپروو کروا لیتے ہیں رقبہ، اس کے بعد اس سے کئی گنا زیادہ فائلیں فروخت کر دیتے ہیں عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے۔ تو اسی طرح ہماری عوام سے التجا ہے کہ وہ اپنے جیسے ایم ڈی اے ان سے معلومات لیں، میونسپل کارپوریشن سے معلومات لیں، آیا کہ یہ کالونی اپروو ہے یا نہیں ہے، تو اس طرح جا کے یہ کچھ ہمارا۔ کوئی اس میں سیاسی اثر و رسوخ بھی کوئی استعمال کرتے ہوں گے لوگ؟ جی، کیونکہ یہ انویسٹر ہوتے ہیں، اربوں پتی ہوتے ہیں، تو سیاسی اثر رسوخ تو ساتھ ہوتا ہے، بلکہ ہوتی بھی کالونی انہوں کی سارا۔ اچھا یہ بتائیں جی، پلاٹوں کی جو خریداری ہے، اس میں کوئی فراڈ وراڈ بھی ہوتا ہے؟ فراڈ وغیرہ تو ہوتا ہے یہاں کافی، جتنے بھی ہیں غریب لوگ پیسہ بھرتے ہیں، وہ بعد میں پلاٹ ہی نہیں ملتا ان کو، یہ حساب ہو جاتا ہے یہاں۔ پھر وہ اپنے پیسوں کی واپسی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں دفتر کے، اور کیا ہونا ہے یہاں، اور اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں دھکے کے علاوہ۔ تو یہ بتائیں کہ ملتان میں جو لوگ پلاٹوں کی خریداری کرتے ہیں اپنے گھر بنانے کے لیے، ان کو کس قسم کی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ سر انہیں ہر مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ قسطوں پہ پلاٹ لیتے ہیں، جبکہ بائی لاز کے خلاف ورزی کر رہے یہ تمام محکمے، ایم ڈی اے، ضلع کونسل، کارپوریشن، ان تمام محکموں کے اندر یہ آتے ہیں کالونی ہیں اور پلازے، جبکہ پلازوں کی سائڈ بیک اور فرنٹ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، نہیں چھوڑتے، ان پہ بھی یہ قبضہ کروا دیتے ہیں پیسوں کی خاطر، پیسوں کے عوض میں یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جبکہ کالونی کے متعلق یہ بتایا جائے بائی لاز ہے کہ 40 فٹ کا روڈ، قبرستان، سکول، مسجد یہ دی جاتی ہے، مگر یہاں کوئی ایسی چیز نہیں دی جاتی، اسے بیچ دیا جاتا ہے کہ جب میرے جیسا بندہ خریدنے جاتا ہے اس کے پاس تو وہ دکھاتے ہیں نقشہ ہے جی، یہ ہے، اس میں یہ گرین بیلٹ ہے، یہ سڑک ہے، یہ مسجد ہے، پلازا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو میرے جیسا آدمی خرید لیتا ہے،
खरीदने के दौरान उसको कब पता चलता है कि उसका प्लाट तो है ही नहीं इसमें? सर उसमें ये होता है, तमाम महकमों की मिली भगत होती है, उसमें जो पार्किंग की जगह और अपना डिस्पेंसरी की जगह होती है, उसमें स्कूल की जगह होती है, वो सारी बेच दी जाती है। लोगों को एक झांसा दिया जाता है कि ये पार्किंग है, ये रोड है, ये प्लाट आपका है। वो प्लाट आगे से आगे 10 हाथों में बिक चुका होता है। बिकने के बाद इनके पास आते हैं तो ये कहते हैं जी हमें क्या पता, जबकि वो पास नहीं होते। ये ब्यूरोक्रेसी जितनी बैठी है हमारी MNA MPs, तमाम उनके खेल हैं जो ये काम करती हैं, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। लोगों के जो प्लाटों की ख़रीदारी के दौरान इन्वेस्टमेंट है वो फंस जाती है, और मुल्तान में बड़ा कोई ये प्लाटों की ख़रीदारी के दौरान हेर फेर बड़ा हो रहा है, इसकी क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले तो आवाम को ख़बरदार होना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि हम जहां अपना कीमती सरमाया लगा रहे हैं वो MDA से या कॉरपोरेशन से अप्रूव है या नहीं है। ये जब इलीगल कॉलोनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं या सस्ते के चक्कर में ये करते हैं तो वो फंस जाते हैं। दूसरी तरफ MDA या कॉरपोरेशन इनको भी चाहिए कि कोई ऐसी कॉलोनी ना बने या ना बनने दें या ना सेल होने दें जो इलीगल हो, ठीक है, जिसने अप्रूवल ना ली हो। तो रिज़ल्ट ये निकलता है कि आवाम का कीमती सरमाया डूब जाता है, वो सड़कों का रकबा भी बेच जाते हैं, उसमें सड़कें नहीं बनाते, सेवरेज नहीं देते, बाकी मामला नहीं देखते। फिर आखिर ये होता है कि फिर एक एक प्लाट 2-2, 3-3 जगह पे बेच देते हैं, सड़कों के बयानात दे देते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इनसे बिल्कुल बाखबर रहें और हमें देख के सोच समझ के हमें वो करना चाहिए। और दूसरा, हाउसिंग सोसाइटी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे मुल्तान में बन चुकी हैं। हमें जितनी आबादी है या जितना आबादी का फ्लो है उस हिसाब से हमें हाउसिंग सोसाइटीज़ की इजाज़त देनी चाहिए। आप ये समझते नहीं कि मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, ज़िला कौंसल हो या कॉरपोरेशन हो, इनको भी एक हदूद बंदी करनी चाहिए कि यहाँ बन सकती हैं? ज़राई रकबा कम होता जा रहा है और जो सारा ये ना सकनी उसमें अराजी में तब्दील होता जा रहा है। जी, आपने बिल्कुल खूबसूरत पॉइंट रेज़ किया है। इसमें ऐसा ही होना चाहिए कि इनको इलाके नॉमिनेट करने चाहिए, जो जैसे रेगिस्तान के इलाके हैं, ये हेड मोहम्मद वाला से आप आगे चले जाएं तो इधर ना काश्तकारी होती है ना कुछ, और वो बंजर पड़े रकबे, वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बनानी चाहिए। ना कि हमारे इतना खूबसूरत रकबे हैं, बागात है मुल्तान में, खेती बाड़ी होती है, पूरी दुनिया में कहीं ये काम नहीं होता, लेकिन हमारे पाकिस्तान में कोई प्लानिंग नहीं। इस पे प्लानिंग होनी चाहिए, इस पे लॉ भी मौजूद हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। अच्छा, एक आम आदमी कब उसकी जो पैसा फंस जाता है प्लाट खरीदारी के दौरान, वो कैसे उसको मिलता है, कैसे मिल सकता है? उसको चाहिए जहाँ भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपनी, वहाँ से सारे इदारों से पता करे कि भाई ये जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मुतल्लिका इदारों से कंफर्म करे पहले कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट फंस तो नहीं जाएगी कहीं। अच्छा, आप ये समझते नहीं है कि मुतल्लिका इदारे के लोग उस तरह की मालूमात नहीं प्रोवाइड करते, या उस वक्त वो भी उनके साथ मतलब किसी न किसी तरह शामिल होते हैं और वो ये बता देते हैं कि जी इसकी फ़ाइल आई हुई है, मंजूर नहीं है लेकिन फ़ाइल आई हुई है, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट हो जाती है तो तब मसला बन जाता है? उसको चाहिए कि पहला अपना सारा कुछ प्रोसेस कंप्लीट कराए, हर डिपार्टमेंट से क्लियर कराए, उसके अपने जहन में भी हो कि यार मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ तो ये मेरा पैसा डूब तो ना जाए कहीं, मेरी इन्वेस्टमेंट फंस ना जाए कहीं, मैं ये ना हो जाऊँ, मैं वो ना हो जाऊँ, मुझे कचहरियों के धक्के ना खाने पड़ें। वो अपने मुतल्लिका इदारे से, जैसे हमारा MDA है, यहाँ पे अगर उसने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई प्लाट वगैरह ख़रीदना है तो उसे आके इदारे से कंफर्म करे कि यार ये मैं यहाँ प्लाट ख़रीदना चाह रहा हूँ तो इसका क्या प्रोसीजर है, क्या मैं अडॉप्ट करूँ, क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए होंगी, ये कॉलोनी आपके पास रजिस्टर्ड है भी या नहीं, तो मुझे इन्फॉर्म करें। हमारे फ्रंट डेस्क पे बैठे हुए हैं बंदे, वो उन्हें गाइड कर सकते हैं, सब कुछ बता सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उन्हें वो फराहम करेंगे उन्हें, तब जाके वो देखे कि भाई हाँ यार मैं इन्वेस्टमेंट अब मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर है, तो मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, मेरी इन्वेस्टमेंट अब एक सिक्योर हाथों में जाएगी, मैं आगे परेशान नहीं होऊंगा। अच्छा, इसमें इस तरह है कि जो अवामुन नास है उनको एहतियात बरतनी चाहिए और उनको ये देखना चाहिए कि जो प्लॉट या वो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हुकूमत से उसकी मंजूर शुदा होनी चाहिए, और उसमें बाद में यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं, जब वो लोगों की सरमाया डूब जाता है तो फिर वो सरकारी महकमों
के भी धक्के खाते हैं, कचहरियों में भी आते हैं। अगर उससे पहले एक बार अगर तस्दीक कर लें तो शायद ये मामलात इस नौबत तक ना पहुँचें। अच्छा ये बताएं कि मुल्तान में जो एमडी है इसके मुताबिक 196 कॉलोनियाँ हैं जो इलीगल हैं, ये कैसे बन जाती हैं और फिर इनको कैसे इलीगल करार दिया जाता है, लोगों के पैसे डूब जाते हैं? सर इसमें ये है कि इसमें बहुत बड़ा हाथ एमडीए का है। इनके जो एहलकार हैं वो पैसे लेते हैं, वो पैसे लेके वो उनको पास करा देते हैं, जबकि वो लीगली पास नहीं हुई होती। जब ये गरीब बंदा एक अपना सारा सरमाया लगा के सारी उम्र बनाता है मकान को, जब वो प्लाट बन जाता है, जब उस पर कंस्ट्रक्शन कर लेता है, उसके बाद ये आते हैं और उसका मकान गिराने के लिए जी या फिर इतने पैसे दे दो, फिर मुकमका होता है। जबकि इलीगल कॉलोनियों को ये होना ही नहीं चाहिए, ये पहले से ही इसका वो होना चाहिए ताकि इसको कंट्रोल किया जाए, ताकि कोई भी गरीब आदमी फंसे ना, वो अपना सरमाया सारा जमा पूंजी जो भी होती है वो अपनी लगा देता है। ठीक है ना, तो इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई भी कॉलोनी वो बनाता है या उसकी कोई पब्लिसिटी करता है तो उसको पहले उसका चेक किया जाए कि ये एमडीए से पास है या नहीं है। प्रॉपर तौर पे डीसी को भी देखना चाहिए कि ये मामला है। बाद में तो हम डीसी को भी दरख्वास्त दे रहे होते हैं, सबको दे रहे होते हैं, लेकिन उसका कोई अमल दरामद नहीं होता। वो बेचारे की जो इन्वेस्टमेंट होती है सारी ज़िंदगी की वो ख़त्म हो जाती है। मेरा यही है कि कम से कम गवर्नमेंट को इस पे लाजमन एक्शन लेना चाहिए और उनके कॉलोनियों को चेक करना चाहिए, प्रॉपर उन्हें रजिस्टर्ड कराना चाहिए। अदरवाइज उनको अलाउ ही ना किया जाए, उसको फौरी तौर पे रोक दिया जाए ताकि किसी की इन्वेस्टमेंट ज़ाया ना हो। और वो अच्छा कोई ऐसी कानूनी कोई उसमें पेशबंदी भी होनी चाहिए कि अगर एक कानूनी जिसको गैर कानूनी करार दे दिया जाए ऐसी कॉलोनी को, तो उसमें जितने भी प्लॉट खरीदे गए हैं उनकी रिकवरी हो सके। हाँ, ये है कि जो अगर एक कॉलोनी गैर कानूनी साबित हो गई है, उनमें चाहिए कि गवर्नमेंट को जो उनके जिन्होंने प्लाट खरीदे हुए हैं या जिनके उधर मकान बना लिए हैं उनको रिकवरी वापस दिलवाई जाए, और उनको बल्कि मुनाफे के साथ उनको ताकि उनको पता लगे कि हमने इलीगल कॉलोनी बेची है जिस पे इन्होंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट कर दी है, और इन्हें रोका जाए और उनको मुआवजा दिलवाया जाए ताकि वो कहीं अपना छोटा मोटा घर अपना बना सके। अच्छा मुल्तान में जो ज़मीनों की ख़रीदारी का हेर फेर है, वो भले कमर्शियल हो या सकनी हो, उसके हवाले से क्या आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, उनकी क्या जो दाद रसी होती है वो कैसे मुमकिन है? असल पता क्या जी, ये जो इलीगल तौर पे कमर्शियल प्लाजे बनाए जाते हैं, कॉलोनियाँ बनाई जाती हैं, एमडीए का जो ऑफिस जिसका काम है कि ऐसे चीज़ों को रोकना, वो पैसे लेकर रिश्वत के उनसे बनाने देते हैं। जब कमर्शियल वो एक बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद वो नक्शे के लिए अप्लाई कर देते हैं जी, फिर बाद में प्रोसेस चलता रहता है। जैसे फिर पार्टियां आ जाती हैं अदालतों में, स्टे ले लेती हैं, काम वहीं रुक जाता है और वक्ती तौर पे उनका कब्जा होने का होता है क्योंकि कुछ भी नहीं होता। शुरू में इनको स्टार्ट में रोकना चाहिए। एमडीए अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल पूरी नहीं कर रहा। अगर कोई पीछे हाई लेवल का बंदा या कोई पीछे चल पड़े, एप्लीकेशन दे ये नजायज़ कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं या ये कॉलोनी नजायज़ तौर पे बना रहे हैं, तो एमडीए वाले ज़्यादा से ज़्यादा एक एफआईआर दे के कहते हैं हमारा काम ख़त्म हो गया, हमने एफआईआर दे दी इन पे, और ज़्यादा से ज़्यादा कभी एक दिन के लिए जाके दफ्तर सील करके आ जाएंगे, अगले दिन वो फिर खोल के बैठे होते हैं। मुल्तान में कोई 150-200 के करीब जो एफआईआर हैं वो एमडीए ने दी हुए हैं, लेकिन वो इस सारे काम का तदारुक तो नहीं हो सका। जब एमडीए के हाई ऑफिशियल्स जो हैं उनके पास जब जाते हैं कि कार्रवाई करें, एक्शन करेंगे, जी हमने तो एफआईआर दे दी है जी, आगे पुलिस जाने आप जानो, उसके बाद हमारा काम खत्म जी, हम आगे कुछ नहीं कर सकते। पैसे लिए होते हैं, चुप करके बैठे रहते हैं, करते ही कुछ नहीं है। उन्होंने 1, 2, 3, 4 ऐसे वाक़यात मेरे सामने भी आए, मेरे पास क्लाइंट भी आए हैं, मेरे पास केसेस भी चल रहे हैं ऐसे सेम। एमडीए ने कोई कार्रवाई नहीं की, बार बार बंदा धक्के खा के आ गया जी। ये जैसे एक कॉलोनी एग्जीक्यूटिव इलाज थी, वो कहते जी वो तो एमपी साहब हैं जी, उनकी कॉलोनी, एमपी साहब के खिलाफ हम कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते, तो स्पीकर से ऑर्डर लेना पड़ता है पुलिस वालों को भी अरेस्ट करने के लिए, और वो कोई कार्रवाई नहीं हो रही उसमें भी। सर ये इस तरह होता है कि जब कॉलोनी बन रही होती है उसकी वो एडवर्टाइज कर रहे होते हैं, उस वक्त जो इदारे हैं वो खामोश रहते हैं। जब वो अपना जाल बिछा रहे होते हैं उस वक्त इदारे हरकत में नहीं आते। जब गरीब अवाम अपने जेवर बेच के, अपनी प्रॉपर्टी, दूसरे जहेज का सामान बेच के और ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा के प्लाट खरीद लेते हैं, उस वक्त इदारे मुतहरक होते हैं और उनको सील कर दिया जाता है कि ये गैर कानूनी है, यहाँ पे बुनियादी सहूलियात नहीं है, ये है वो है। इदारों को चाहिए कि जब कानूनी कंस्ट्रक्शन का बुनियादी काम हो रहा होता है उस वक्त वो हरकत में हैं और अपना जो कानूनी उनका प्रोसेस है सबसे पहले वो मुकम्मल करें, उसके बाद अवाम जो है वो प्लाट खरीदने के लिए उसको फरीक। ये मुल्तान में 3 इदारे हैं
जो आपस में बंदर बांट की अपने हिसाब के चल रहे हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और ये MDA और ज़िला कौंसिल जो है, ये तीनों अपने बंदर बांट के चक्कर में एक दूसरे के गिरबान में पकड़े होते हैं, आवाम को लूट मार के ये चक्कर में रहते हैं। जब आवाम लूट जाती है फिर ये एक दूसरे के खिलाफ शुरू हो जाते हैं और आवाम शहरी जो है बहुत परेशान हो जाते हैं। और इस तरह नजायज़ जो जितनी भी अपना कॉलोनियाँ बनाई गई हैं, जब बनाई जाती हैं तो तब इनको इंतज़ामिया को चाहिए कि इस पे अमल दरामद करें, इनको देख के नोटिस करें। मगर जब शहरी लूट जाते हैं उसके बाद इनको होश आ जाता है और ये आपस में ड्रामेबाजी शुरू कर देते हैं आवाम को सिर्फ ख्वार करने के लिए। ये बिल्कुल ये जो है हुकूमत का और इंतज़ामिया का जो है एक बहुत बड़ी नेगलिजेंसी है, जिसको जो है इसको रूट से ही शुरू से ही इसको ख़त्म करना चाहिए। जब ये कॉलोनी जब तैयार हो रही होती है, कोई प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है तो उसकी पहले से जो है तैयारी जो है वो नहीं होती, जिसके बायस जो है ये चीज़ें जो है बाद में होती है। इसके लिए चाहिए हुकूमत जो है इसके लिए कोई हिकमत अमली तैयार करे, या ज़िला इंतज़ामिया जो है इस उनके पास क्योंकि पूरी फोर्स होती है, फोर्स की अलग अलग ज़िम्मेदारी है, वो अपनी ज़िम्मेदारियों को जो है आसान तरीके से अंजाम दें तो ये चीज़ें जो है मुस्तक़बिल में नहीं देखने को मिलेंगी। अच्छा ये बताएं सर कि मुल्तान में क्या समझते हैं कि ज़मीन की ख़रीदारी के दौरान क्या मामला चल रहे हैं? मुल्तान एज अ होल तो बड़ा फ्लोरिश था इस मामले में कि ज़मीन की जो कॉलोनियाँ वगैरह काटी जा रही थी, बड़ी अच्छा सिस्टम चल रहा था। तो एकदम से जो अभी कुछ 1.5-2 साल से ऐसा सिलसिला चला है कि जो भी अब नई कॉलोनियाँ आबाद की जा रही हैं या प्लाटिंग हो रही है या लोगों को धड़ बेची जा रही हैं फ़ाइलों की मद में या कब्ज़े की मद में, तो जब मौके पर बंदा पहुँचता है तो पता लगता है कि ये अप्रूव्ड नहीं है, इसके टैक्सेस पे नहीं हुए, इसके रास्ते वगैरह सही तरह से नहीं काटे गए, या जगह या प्लाट छोटा मिल गया उसको साथ वाले आ गए, उन्होंने कहा जी ये प्लाट छोटा है जी तुम्हारा, तुम पे मैच दोबारा करवाओ, या वो ईंटें गिरवा कर अभी तामीर शुरू कर रहा है। तो कल परसों का एक वाक़या है मैं जिसमें गया तो मुझे समझ आई कि ये तो सरासर उन लोगों की बदमाशी है जिन्होंने रकबा बेचा है और उन्होंने गवर्नमेंट से NOC नहीं लिया और बगैर NOC के उन्होंने कॉलोनी अनाउंस कर दी और कॉलोनी बन गई। और बनने के बाद जब लोग बनाने के लिए वहाँ जाते हैं तो वहाँ कोई फैसिलिटेशन भी नहीं है, ना उनको सहूलियात मुयसर आती हैं, ना उनको सीवरेज का सिस्टम है, ना उनके लिए कोई सड़कें हैं, और आपस में लोग सर बाढ़ रहे हैं कि ये क्या सस्ते मकान है, ये क्या तरीक़ाकार है। गवर्नमेंट इस पर थोड़ा फोकस करे। और प्रीवियसली कुछ पॉलिसीज़ अच्छी थी, वो बड़ी रिलैक्स भी थी, एक कंज्यूमर के लिए भी और आम बंदे के लिए भी, कि वो एक छोटा सा घर बना के, आशाना बना के, बंदे का ख्वाब होता है इंसान का कि वो घर बनाए और उसमें रहे सुकून के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, और वो उसका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ही ना हो, चिकना चूर हो जाए। जब वो जाए वहाँ बनाने के लिए तो गवर्नमेंट के इदारे भी पड़ जाएँ उसको, और उसको जनाब अली लोकल कम्युनिटी भी पड़ जाए, और उसको डीलर्स भी पड़ जाएँ कि वो तो बेचारा जेबें झाड़ कर और रोता पीटता घर सार पीट के बैठ जाएगा कि मैं ना घर बना सकता हूँ, ना मैं अपने बच्चों के लिए छत बना सकता हूँ, ना मैं उनको राहत दे सकता हूँ। तो ये सारे चीज़ें तरतीब में आनी चाहिए और इदारों को इस पे काम करना चाहिए और लेजिस्लेशन लाई जाए पार्लियामेंट में नई से नई, ताकि ये लोगों को शेल्टर मैसर आए और घर मैसर आए। ये अमीर तर हो रहा है, गरीब तर हो रहा है, ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। इक्वलेंसी होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, और उसके लिए टैक्सेस तो निकाले जा रहे हैं, एक्सक्यूज़ किए जा रहे हैं, गर्दन पे नोक रख कर रजिस्ट्रियाँ इन्होंने महंगी कर दी हैं, इतनी फीसी कर दी हैं। अभी नकूल निकलवा के मैं आ रहा हूँ, मैं कचहरी में आया हुआ था, नकूल निकलवा के जो मेरी नकलें 300-350 में निकलती थी, अब वो 3500 में निकली हैं। 3500 यार मैंने पे किया है, जबकि इन्होंने प्रीवियस जो अनाउंस किया था वो 35,000 में था। ये तो थोड़ा भाग दौड़ करने के बाद लोगों ने एहतजाज किया और फिर 3500 हमने पे किया। तो कंक्लूसिव बात यह है कि लेजिस्लेशन पार्लियामेंट से आनी चाहिए, ऊपर से आनी चाहिए और यहाँ पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ताकि हमें आसूदगी मैसर आए, आम ले मैन अच्छी ज़िंदगी गुजारे, आसान ज़िंदगी गुजारे। इस वक्त हम मौजूद हैं MD ऑफिस में और डायरेक्टर जनरल मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी राना सलीम अहमद साहब हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करते हैं कि मुल्तान में जो गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनी और कमर्शियल प्लाजे हैं उनके ख़िलाफ़ ये क्या कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, कितने लोगों को ये रिलीफ दे पा रहे हैं और इनकी इस एक्टिविटी से जो सादा लोग हैं वो किस तरह बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है, हुकूमत पंजाब की बहुत ख़ास हिदायत है इस सिलसिले में
اور کورٹس کے اندر بھی اس معاملے کو ٹیک اپ کیا گیا ہے. تو آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے جو جورسڈکشن ہے MDA کی, اس میں 196 انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں. ان میں سے 150 کے قریب ہم نے FIRs بھی درج کرائی ہیں, ان کی سیل پرچیز بھی بند کی ہوئی ہے. ان کے خلاف 23 مرتبہ ہم اخبار میں اشتہار بھی دے چکے ہیں, ان کے نام باقاعدہ لکھ کے. لیکن پھر بھی سادہ لوگ ہوتے ہیں اور کچھ شاید پروفٹ کے لالچ میں ان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں. ایک فل فلیج قسم کا ہم نے آپریشن پچھلے ہفتے سے لانچ کیا ہوا ہے. ہر روز جس طرح سے ہماری کیپیسٹی ہے 2 یا 3 یا 4 ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف, انلیگل سوسائٹیز کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے, ان کو سیل بھی کیا جا رہا ہے. جہاں پہ ڈیمولشنگ کی ضرورت ہے یا ہو سکتی ہے تو وہاں پہ ڈیمولشنگ بھی کی جا رہی ہے. میری آپ کے چینل کے توسط سے یہ بھرپور گزارش ہوگی عوام سے کہ وہ تمام انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز میں کسی بھی سیل پرچیز سے باز رہیں, مہربانی کریں, ورنہ ان کے پیسوں کا ضیاع ہوگا. اور اگر کوئی معاملہ بہت بڑھ جاتا ہے تو پھر بعض اوقات معاملہ نیب تک پہنچتا ہے, کیونکہ ہمارا اختیار تو ایک FIR تک درج کروانے کا ہے یا ڈیمولشنگ کرنے کا ہے. اس سے زیادہ کا اختیار اگر ان سے پیسے واپس حاصل کرنے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہے, اس کے لیے نیب جانا پڑتا ہے. سر ایسا ہے کہ کچھ ہیں اطلاعات کہ MDA نے بھی اپنا کوئی پورٹل یا اس طرح سے کوئی انفارمیشن بنایا ہوا ہے کہ کوئی نیا پلاٹ کوئی خریداری کرنا چاہے تو وہ MDA سے رابطہ کرے, ایسی کوئی سہولت آپ؟ جی, ہمارا جو پورٹل ہے اس پہ ہم نے بطور خاص ہم نے یہ بار بار چیک کیا ہے اور انشور کیا ہے کہ جو تمام انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہمارے کنٹرول ایریا میں ہیں ان کی لسٹ اپ ڈیٹ رہے, ویب سائٹ پہ اویلیبل رہے. اور اگر عوام ویب سائٹ پہ اس ڈیٹیل کو دیکھ لیں تو انہیں مل جائے گی کہ یہ انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹی ہے یا لیگل ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. براہ کرم جو بھی یہ جو لائٹنگ لگا کے عوام کو اٹریکٹ کرتے ہیں ان سے باز رہیں, اور پلاٹ خریدتے وقت یا کسی بھی جگہ انویسٹمنٹ کرتے وقت ان سے اپروول کا لیٹر ضرور طلب کریں. جی سر دیکھیں, وہ اتنے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں, تشہیر کرتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ اس طرف تو جاتی نہیں, ٹیکنیکل جو چیزیں ہیں وہ پوچھ نہیں پاتی. تو یہ آپ کے توسط سے کیا کیا چیز ایسی ہے جو ایک عام آدمی جائے نئی ہاؤسنگ کالونی میں یا نئی کمرشل پلازے کی میں خریداری کے لیے اپنے پلاٹ کی شاپس کی, تو کون سی چیز ان کو اسپیسیفک ڈیمانڈ کرنی چاہیے؟ جی, ابھی تو میں نے اپنی گفتگو میں پہلے ہی آپ کو یہ گزارش کی ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ کسی بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے, MDA سے, ضلع کونسل سے یا کارپوریشن سے, جس کا بھی وہ ایریا ہے, وہ ان سے ڈیمانڈ کریں کہ ان سے ہمیں اپروول لیٹر ہمیں دکھائیں اور اس کی کاپی بھی لیں, اور متعلقہ محکمے میں جا کے بے شک اس کو ویریفائی بھی کروا لیں تاکہ ڈبل چیک ہو جائے کہ وہ جو انہوں نے اپروول لیٹر کی ان کو کاپی دکھائی ہے یا آفس میں لگائی ہوئی ہے وہ واقعی ہی صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. تو عوام اگر اس ایک پوائنٹ کے اوپر توجہ دیں, غور کریں, تو بہت سارے قباحت سے بچ سکتے ہیں. سر ایک چیز کامن ہے لوگوں کی, عوام کی بھی ایک کوشچن ہوتا ہے کہ یہ جو کالونی بناتے ہیں تو یہ کیوں نہیں اپنے آپ کو ریگولرائز کراتے, اس میں کیا ان کا کوئی پروفٹ ہوتا ہے یا کوئی چارجز زیادہ ہوتے ہیں جو وہ بچانے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے نا ریگولرائز نہیں کراتے؟ جی, جب ایک ریگولیٹر کے پاس وہ آتے ہیں تو ٹھیک ہے کہ ان کو تھوڑی سی قباحت, تھوڑی سی دشواری تو ہو رہی ہوتی ہے کہ انہیں آ کے جو ہماری ریکوائرمنٹ ہیں وہ فلفل کرنی پڑتی ہیں. ان زمین کو ہمارے نام کرنا پڑتا ہے, اس میں سے کچھ زمین, کچھ پلاٹس کو شورٹی کے طور پہ کہ وہ ڈیولپمنٹ ورک کروائیں گے, اور جو اس کا لے آؤٹ پلان ہے اس میں جو روڈز ہیں ان کی وڈتھ خاص ہوگی, اس سے گھٹ نہیں ہوگی. پلاٹ کا سائز اس طرح سے ہوگا, اتنا پرسنٹ ایریا کمرشل ہوگا, پارک اتنا ہوگا, دوسری جو فیسلٹیز ہیں بجلی کی, سوئی گیس کی, اس کی فیسلٹیز کو انشور کروایا جاتا ہے اس سے مارٹگیج پلاٹس کی صورت میں. تو ان کا جو پروفٹ مارجن ہے وہ نسبتاً پھر کم ہو جاتا ہے. تو اس لیے ان کی ٹینڈنسی یہی ہوتی ہے کہ جلد از جلد بس لگائیں اور جتنی جلدی سے اس میں سے پروفٹ کما کے نکل سکیں, یہ ان کی کوشش ہوتی ہے. عوام سے میری آپ کے توسط سے ایک مرتبہ پھر بھرپور ریکویسٹ ہوگی, بے شک اس کو ریپیٹیشن بھی سمجھیں, کہ وہ اپروول لیٹر ان سے لیں اور اگر اس کو یہاں سے کنفرم کروا لیں کہ یہ واقعی جاری ہوا ہے تو تبھی اس میں انویسٹمنٹ کریں. سر یہ تو ہاؤسنگ کالونیز کے حوالے سے ہو گیا. جو کمرشل پلازے بن رہے ہیں جو MDA کے حدود میں آتے ہیں ان کے لیے بھی یہ سیم یہی فارمولہ ہے؟ جی, کمرشل پلازوں کی جو اپروول کا سلسلہ ہے وہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے. جو بھی تھرو پراپر چینل ہمارے پاس کنورشن کے لیے جو اجازت کے لیے آتی ہے وہ ہم اس کو پروسیس کر رہے ہیں, اور بالکل اس کے اندر کوئی تساہل نہیں ہے. کوئی پلازے جو بن چکے ہیں جس میں انلیگیلٹیز ہوئی ہیں
कुछ जगहों पे जैसे हमने खुद नोटिस किया है, सिटी टावर है, चेज़ अप है, और एक दो और भी हैं जो बन चुके हैं जिसमें इलीगैलिटीज़ हुई हैं। कुछ जगहों पे जैसे हमने खुद नोटिस किया है, सिटी टावर है, चेज़ अप है, और एक दो और भी हैं। तो हमने जो जो ऑफिसर्स उसमें इन्वॉल्व थे, भले वो सीनियर्स थे या जो भी थे, हमने उनके ख़िलाफ़ पीडा एक्ट के तहत इंक्वायरी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है, और मुझे तवक्को है कि वो कार्रवाई शुरू होगी तो कानून के मुताबिक, बिल्कुल बामुताबिक कानून, उनको जो भी अगर कोई सज़ा साबित होती है तो वो दी जाएगी। जैसे मुल्तान शहर में जो ये कॉलोनियाँ हैं, इनकी कोई हद मुकर्रर की गई है कि ये इस एरिए के अंदर बन सकती हैं? जैसे अर्बनाइजेशन बहुत बढ़ती जा रही है, जो हमारा फार्मर है या एग्रीकल्चर लैंड है वो इसमें आती जा रही है, तो उसकी कोई लिमिट है? जी बिल्कुल है। जो हमारा मास्टर प्लान है 2008 से 2028 तक जो काबिल अमल है, जिसकी बाकायदा हुकूमत पंजाब थ्रू लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नोटिफाई भी हुआ है, उसके मुताबिक जो ब्राउन एरियाज़ हैं, सिर्फ उन ब्राउन एरियाज़ के अंदर जो है हाउसिंग कॉलोनीज़ बन सकती हैं। जब भी कोई हाउसिंग कॉलोनी के लिए एप्लीकेशन सबमिट करता है तो सबसे पहला जो चेक हमारा होता है वो यही होता है कि ये ब्राउन जोन के अंदर है या नहीं है, तो उस ब्राउन जोन के अंदर ही इजाज़त दी जाती है। लेकिन कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ बहुत पुरानी भी हैं जो कि इन ग्रीन एरियाज़ के अंदर छोटी छोटी सी शुरू कर दी गई, तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है। अब मौजूदा जो नया मास्टर प्लान लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हुकूमत पंजाब की हिदायत पे बना रहा है, तकमील के मराहिल में है, उसमें तवक्को है कि इन तमाम फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए ब्राउन एरियाज़ को इस तरह से बढ़ाया जाएगा कि वो जो हमारी फर्टाइल लैंड है वो भी बच जाए, और शहर की डेवलपमेंट के लिए और ख़ास तौर पे वर्टिकल डेवलपमेंट को अरूज हासिल हो। बहुत शुक्रिया सर। जी बिल्कुल ऐसे ही है। डायरेक्टर जनरल मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो अहम सवालात हैं उनके जवाब दिए, और उनका ये कहना और लोगों के लिए ये एक मशले राह बन सकता है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लुटाने से बेहतर ये है कि वो एक दफ़ा MDA के ऑफिस का चक्कर लगा लें और यहाँ से जिस जगह वो प्लॉट ख़रीद रहे हैं उसकी वेरिफिकेशन कर लें। प्रोग्राम की वसातत से शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो जो गैर कानूनी या गैर मंजूर शुदा कॉलोनी है उनको कायम होने से रोका जाए, और शहरियों से भी इदारों ने अपील की है कि वो अपनी जमा पूंजी खर्च करने से पहले जो मुतल्लिका इदारे हैं, जिसमें मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, ज़िला कौंसल या कॉरपोरेशन के इदारे हैं, वहाँ से ऐसी कॉलोनियों की तस्दीक कर लें तो वो बड़े नुकसान से बच सकते हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।